ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਅਤੇ ਨਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਸ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਭੇਦ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ 8 ਤੇ 9 ਦੇ ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀਏ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ। ਕਈ ਮਨ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਜਿਤਨੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਹੈ ਇਤਨੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਭਵਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਜਾਪਦਾ ਆ, ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਉਹ। ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਿਰਦੇ, ਇਹ ਚੰਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆ। 9 ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਬੈਠਾ ਆ। ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਅਸਚਰਜ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਸੁਰਤ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤੇ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਤੌਰ ਤੋਂ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸੁਰਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੈਨੇ ਖਿਆਲ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੋੜ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ
या इथों सुन दे विच ख्याल लैके, कोई ख्याल माया भी नहीं, जो इथों ख्याल लैके मालिक नूं सुरत दे राही आ, रसना तो बोलना नहीं, सुरत दे राही जो आ मालिक दे अगे बेनती करता आ, वो अरदास खिन मात्र समय दे विच ही हो जाती है, उहदे लई घंटे नहीं, क्योंकि माया नूं थले छड़ गया, मालिक दे दर ते चलिया गया। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ भी ਅਸੀਂ सिमरन अभ्यास करने बैठा करें, किवें अरदास करें, जिन्नी देर मन त्रै गुणा दे विच है वो अरदास कर ही नहीं सकता। त्रै गुणा का मतलब समझते हैं आप, खेड़ तो आप काया दे विच ही रहे हैं, खेड़ तो आप त्रै गुणा दे विच ही रहे, हुण आप विचार ले लेने हैं कि सानू चौथे पद विच जाना नहीं, त्रै गुणा दे विच साडी अरदास प्रवान होनी नहीं, फिर की बनूगा। जिन्नी देर माया तो औखा होके मालिक दा चेता नहीं करता, उन्नी देर अरदास मन बच्चे दी हुंदी नहीं। जे आ माया दे विच आनंद लैंदे होया, माया दा रस भोगदे होया, भावें एक एक घंटा नहीं, पूरी पूरी उम्र भी अरदास करी जावे, वो अरदास हैगी। अरदास उन्होंने कहा गया है, महाराज भेज दे रहे हैं, कर मिन्नत कर जोदड़ी। अगे महाराज ने की भेज दिता, मोहे प्रभु मिलण का चाओ, जिहदे विच मनोरथ ही एक अकाल पुरख परमात्मा दा हो, दूसरा कोई मनोरथ ही ना हो। जिदा त्रै गुणा दी कीती, त्रै गुणा दी, रसा दी, माया दी, वो जो सारी अरदास है उन्होंने महाराज ने भेज दिता कि बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखां के दुख, कहने वो तो माया की अरदास, जिहड़ी मालिक दे मिलाप की अरदास आ, ओह सुरत दे राही मन बचा खिन मात्र समय भी कर सकता है। जे इहने सच्चे हिरदे दे नाल मालिक दा चेता कीता, अरदास हो गई। बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। ਇਹ ਤੁਕ ਦਾ अर्थ मन बच्चे ने आप दी मत नूं लेके अर्थ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਖੇਡ ਸਮਝਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਮਈਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਮਈਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ। अरदास करने के लिए बर्डिंग की लोड़ नहीं, तो प्रेम करने के तरीके हैं। गुरबाणी गुरु दे विच प्रेम करने दे मन नूं निर्मल करन दे, जिहड़ा मन कठोर हो गया उन्हें निर्मल करने दे लई ये शब्द है, ये गुरबाणी है प्रेम दी, इनू मन नूं बराग पैदा करन दी, इनू निर्मल करन दी, इनू हौमे तो रहत करन दी, ये महाराज ने सारा कुछ कलमबंद किया है। ये महाराज दुहाई समझा रहे भी अरदास कोई बहुते अखरा दे विच ही अगर कहा जाए तो अरदास नहीं, जदों माया तो दुखी होके मालिक दा चेता कर लिया, अरदास हो गई। ने अनेक जन्म बिछड़े थे माधो, यह अरदास आ। अनेक जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लिखे, अरदास आ। रामैया हो बारिक तेरा, अरदास आ। काहे ना खंड सगुण में, इस सारी गुरबाणी गुरु दे विच सारी अरदास ही तो है, मालिक दे अगे मिन्नतां जोदड़ियां ही तो है। महाराज फिर समझा रहे हैं, कहने जे तू मित्र असाडड़ा हिक पोरी ना छोड़, ये रिक्वेस्ट ही तो है, अरदास ही तो है, बेनती ही तो है। महाराज भेज दे रहे, एदा निमाणा हो जाना, माया तो औखा हो जाना, ये अरदास ही है। अरदास के लिए कोई खड़ के शब्द ढूंढने की लोड़ नहीं। महाराज कह
ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਖੇਡ ਸਮਝਾਈ ਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। लेकिन स्पेशल कुछ अपनी तरफ से मनमत दे राही कुछ वर्डिंग इकट्ठा करना महाराज जी ने अरदास ने वैराग दे राही निकला होया हर लफ्ज अरदास है। होमे तो टुटन तो बाद हर एक बोला होया शब्द अरदास है। जे अरदास कोई फिक्स की जाती तो एक अलग ही अरदास बनाई जाती। आप विचार करो सारे गुरसेवान भगत सेवान जी गुरबाणी गुरु दे विच मालिक नूं अरदास कर रहे हैं, लेकिन सारियां दे पिछे प्रेम छुपिया होया है। प्रेम विछोड़े दा दुख छुपिया होया है। कहण तो भाव माया दा चंगा ना लगना, मालिक दा चेता आ जाना और उहदे विच हर एक श्वास पे मालिक दे लई जो भी कुछ बोला जाऊगा वो अरदास ही होगी। हुण आपां कहंदे भी मैं अरदास किवें करां, मालिक नूं सच्चे हिरदे दे नाल मन बुलांदा रहे लगातार, वो अरदास ही हो रही है भी सच्चे पातशाह मेरे ते तरस कर, इन्हें किरपा करो दीन के दाते। अरदास आया किरपा करो दीन के दाते, मेरा गुड़ अवगुण ना विचारे। मन अरदास ही कर रहा ना सच्चे पातशाह मेरे अवगुणा नूं ना विचारी, मेरे ते तरस कर। जेड़ा मन बच्चा गुरबाणी गुरु नूं बुझ के चल पिया ਉਹ जितनी देर मिलाप नहीं ਹੁੰਦਾ उतनी देर अरदासा ही ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ। संपूर्ण गुरबाणी गुरु ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੋਦੜੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਜਾਨ ਜਨ ਤਰਬੋ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ किसी के बुलाने का तरीका कुछ हो सकता है, किसी के बुलाने का तरीका कुछ हो सकता, तरीके का भाव जुगती नहीं बदली जानी। लेकिन महाराज भेजते रहे नामदेव जी ने वखरे तरीके नाल प्यार किया मालिक नूं, धन्ना भगत जी ने वखरे तरीके नाल, लेकिन प्रेम तो प्रेम ही है ना, प्रेम तो प्रेम ही है। तो महाराज मिले भगत कबीर जी ने वखरे तरीके नाल किया। वखरे का मतलब कि किसी ने कैसे मनाया, किसी ने कैसे मनाया, किसी ने कैसे मनाया, भाव का मनान तो था। इसी तरीके नाल आप दा जो भी तरीका है मालिक दे अगे भाव का निमाणा होना है। महाराज भेजते रहे हुण आपां नूं भेज दिता कि तुसीं सिमरन करो, करो कि सिमरन करो ते मालिक नूं मनाओ। सिमरन करके आप मालिक नूं मना ही तो रहे हैं। मनान का मतलब महाराज ने ज्ञान दिता कि तुसी रजो तमो सतो दे विच फस गए, माया थोड़ा खेड़ा नहीं छड़दी। कहने माया ममता मोहनी बिन दंता जब खाई, कहने ये छड़ नहीं रही, पीछा नहीं छड़ रही, खेड़ा नहीं छड़ रही। कहने ऐदा करो ऐदा इलाके ही छड़ दो, सुरत करके इलाके तो बाहर निकल जाओ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿੱਚੇ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਥਾਂ ਢੂੰਡ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋ। ਉਹ ਥਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ। ਜੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਜਦੇ ਆ ਭਗਤ ਸੇਵਾਨ ਗੁਰ ਸੇਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੀ ਆਈ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ,
तेरी हौमे भी कट्टी जाती आ। दूजी गल तू श्वास श्वास अरदास भी करता जो आवाजा मारदा ना मालिक नूं, ये अरदास ही होंदी आ। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। कि तू घर ते बाहर आ गया, घर जाण दे लई मालिक नूं अरदासां बेनतियां कर रहा, सच्चे पातशाह दर खोल, मैनूं घर आण दे, ये दरवाजा खोल। गुरबाणी गुरु नूं विचार के देखो, हर एक दूसरी तीसरी तुक तो बाद इदा तो महाराज ने हर कोई शब्द कलमबंद किया है जिहदे विच मन की कर रहा है। मन नूं वार-वार महाराज ने एक ही भेज दिता, इनू निमाणा होण दा, इनू निमाणा होण दा, इनू मिन्नतां जोदड़ियां करन दा, इनू माया नूं छड्डण दा, सुरत करके किदां किदां दियां उदाहरणां दित्तियां। कहने जिद्दां नालां दा, टिब्बां दा, किदां किदां गंदा पानी भावें किते किते तो भी आ रहा हो, कहने जे किते वो इस शब्द है गुरबाणी गुरु दे विच असीं कुछ समय पहले विचार रहे थे उन्होंने, कहने जे किते वो किसी नदी दे विच जाके गिर जावे ते कहने वो भी पवित्र हो जाता, साफ हो जाता, क्योंकि दी होंद बड़ी आ। इसी तरीके नाल आपां नूं खेड़ समझा रहे हैं, भावें आपां कितने भी अवगुणा दे भरे हुए हां, मालिक दे गुण तां अथाह है ना, मालिक दे गुण अथाह है, बेअंत है, अनंत है। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਅਗੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ नहीं। श्वास श्वास छिन छिन मात्र समय पे भुलड़हार है, लेकिन जे मालिक दी महाराज पे जेरे बड़ियाई देखी जावे ते महाराज ने कलमबंद किया, गहर गंभीरा गुड़ी गहीरा कोई ना जाने तेरा किता के बख्शीरा। कहने वो गुणा दा सागर आ, वो की है गुणा दा सागर आ, सागर जिहदा सिरा ही नहीं किसी को मिला, अथा बेअंत है वो। कहने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਨੀ ਜੀ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਓਗੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਐ ਕਰ ਲਊਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, क्योंकि वो बख्शण योग है, वो हम सर दीन दयाल ना तुम सर, ये अरदास है गुरु। हर पासे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਇਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੂਗਾ ਤੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, रिक्वेस्ट करना। और कोई अपने दर तो खड़ा होवे और वो अपन दरवाजा खोलने के लिए आवाज मारे तो वो सानू की कर रहा है, रिक्वेस्ट ही कर रहा ना, दरवाजा खोलो भाई। एक बार आवाज लाई उन्हें, दो बार लाई, तीन बार लाई, जे अरदास जे आवाजा लाई जा रहा है तो वो लगातार ही रिक्वेस्ट कर रहा है और दर तो जाता नहीं, दरवाजे तो हटता नहीं ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰੂਗਾ। कभी वो किसी भाव को आवाज ला रहा, कभी किसी भाव को आवाज ला रहा, लेकिन पीछे जाने को तैयार नहीं। यानी सगल द्वार को छाड़ के गए हो तुम्हारो द्वार, अरदास कर रहा है वाहे गए की राजस गोविंदास तुहार। किसी दे दर ते खड़ के हटना नहीं, पीछे निरंतर उन्होंने आवाज लाई जाना, ਇਹਦਾ मतलब निरंतर अरदास कर रहा है, किसी स्पेशल समय च बैठ के अरदास नहीं कर रहा। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬੱਚਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ
ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਜੋ ਤਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਧ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਸੰਜ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਗੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਰੋਮ ਰੋਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗੇ ਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਾਪ ਕਦੋਂ ਹੋਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤ ਟਾਂਡਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਈ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਜਪਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਵੀ ਦਰ ਖੋਲ ਮਾਲਿਕ, ਦਰ ਖੋਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अरदास कर रहे हैं ना, ये विचार है ना, एक भावना लिखी अंदर दी, भावना कलमबंद कर दी। जिन्हों संता दा मार्ग कहा, जिन्हों की कहा संता दा मार्ग, वो यही विचार है। एक विचार तमो ते रजो दे विच जिहड़ी चल रही है, जिहड़ी कठोर आ, एक जिहड़ी सतो दे विच आ गई, जिहदे विच की जत सत दया निमरता सहनशीलता महाराज ने भेज दिता। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੋਊਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਹਮ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਮਨ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਸਭਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਤੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਜਿਵਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰਨਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਖੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਖੋਲ ਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਖਸ਼ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਬਾਲਕ ਮੁਗਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਸਮਝਾਵੇਂਗੇ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਠੋਰ ਜਿਸ ਪੈ ਹਮ ਜਾਵੇਂਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਮਨ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਢਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਥੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਮਨ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੇ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਕੀ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਨੇ ਕਰ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਜੋਦੜੀ, ਕਰ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਜੋਦੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬੱਚਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰ ਖੋਲ, ਮਾਲਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਗਿਆ, ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ, संता का मार्ग धर्म की पौड़ी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ।
कहने जत सत दया निम्रता सहनशीलता वाले जिहदे विच विचार वध पैदा होएंगे, मन सतो गुणी हट तो ज्यादा खेडूगा, नाल गुरमत नूं विचारूगा। महाराज बेदे ने संतां दा मार्ग है, कादा मार्ग है? संतां दा मार्ग है वो। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬੱਚਾ ਨਿਮਾਣੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੇਟ ਡੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਖੋਲੋ, ਕੋਈ ਹੈ ਖੋਲੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਦ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। सिमरन की ही परिभाषा संपूर्ण गुरबाणी गुरु है। सुरत ने सिमरन ही तो किया, महाराज ने फिर समझाई, जदों सिमरन करना सुरत ने शुरू कर दिया ते तहे तहे ते मनाया, वो विचार वो सारी बाणी कलम बनदा किदां किदां मनाया इन्हें मालिक को। पहले वाहिगुरु गुरमंत्र रही, वो भी गुरमंत्र महाराज ने भेज दिते हैं। पहले गुरमंत्र दे राही मालिक नूं अरदासा करदा रहा, सिमरदा रहा। उस तो अगे मालिक दी मुख दी आवाज जिन्हों नाम कहा, कहने फिर मालिक नूं उहदे राही सिमरदा रहा। फिर उस तो भी अगे महाराज ने ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था कलमबंद की, कहने फिर मालिक नूं देख देख के, देख जीवा गुरु दर्शन तेरा, देख जीवा कहने फिर उन्हों देख देख के उदी सेवा करता रहा, सिमरन करता रहा। सिमरन बंद नहीं होना, सिमरन बंद नहीं होना। वाहेगुरु गुरमंत्र ते शुरू होके इथों नेत्रा तो शुरू हो जाए। सिमरन का पाप तो आप समझ ही गए ना, महाराज ने आपको समझाया। सिमरन बंद नहीं होना, किसी चीज का चेता लगातार चलते ही रहना, चलते ही रहना। पहली पौड़ी महाराज ने सानू गुरमंत्र दी, उस तो बाद इथों जाके सहज धुन दी, उस तो बाद जाके जो संदृष्ट हो गया, एक दृष्ट हो गया, महाराज ने भेज दिता, ब्रह्म का भेद आ गया। कि फिर देख देख के मालिक का सिमरन करन। सिमरन का मतलब समझ गए आप, उहदे सन्मुख हो गया, उहदी सेवा करन लगा, उन्हों प्रेम करन लगा। पहले उन्हों प्रेम कर रहा था पर नजर नहीं आ रहा था, उस तो बाद प्रेम करा वो सुनाई देने लगा। फिर उस तो अगे भेद आया कि वो सुनाई देने के साथ साथ दिखाई भी देने लगा। फिर तक पूरा एक खुल के ते प्रेम मालिक नूं करन लगा, पूरा भरोसा बन गया। मैं नाही किते लबो एक नाव तेरा मैं हबो, मन गया उत्थे जाके। उत्थे जाके फिर आप मालिक नूं प्रेम करन लगा, मालिक बच्चे नूं प्रेम करन लगा। कहने ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ऐसे ही तो नहीं महाराज ने कहा, कीती होगी ना लाल, प्रेम किया होगा ना मालिक ने बच्चे नूं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया में है। फिर वो भी अपने बच्चे को प्रेम करन लगा, एक दूजे दे सन्मुख हो गए, प्यो ते पुत ते दोने आपस दे विच की करन लगे, प्रेम। क्योंकि महाराज ने खेड़ ही प्रेम की समझाई है। ग्रह कर रहा था, विराग कर रहा था, क्योंकि विछड़ गया था, ते मिन्नतां जोदड़ियां कर रहा था, मैं विछड़ गया, मैनू मिला ले। मैं
ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਸਕੇ। ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਸਜਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਨਾ ਮਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਸਜਣਾ, ਆਹੋ ਸਜਣਾ, ਹਉ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ। ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਭੋਲਾ ਭਾਵ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਾਵੇ। ਜੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਤੇ ਭੋਲੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਥੇ। ਅਰਦਾਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਲਿਕ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਬ ਸ਼ਰਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, अपना जान करो प्रतिपारा, बेनती कर रहा हमरे दुष्ट सबे तुम हो। कहने सारी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੂਗਾ, ਚਿੰਤਨ ਕਰੂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਹੇ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਾੜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ, ਦਰ ਖੋਲ ਮਾਲਿਕ, ਦਰ ਖੋਲ, ਦਰ ਖੋਲ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ। ਕੇਵਲ ਰਸਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਬੋਲੂਗਾ ਮਾਲਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਾਹ ਹੁਣੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਆ ਇਹ ਧੜਕਣ ਦੇ ਸਾਥ, ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਥ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸਾਥ, ਚਮੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਦੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਧਕ 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 ਧਕ, ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲੂਗਾ, ਆਪ ਹੀ ਬੋਲੂਗਾ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੂਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੂਗੀ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਕੰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਤੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਪਰੋ ਲਊਗਾ ਨਾ, ਜਹ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਰਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਊਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰੋਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਊਗਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਧਿਆਊਗਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰ ਖੋਲ,
केवल रसना नहीं जाओगी। महाराज भेजे ने ये बॉडी का हर एक रोम रोम कितों भी सुन सकता है गुरमंत्र तू, भावे इथों सुन एक शब्द तो सुन ही सकता है, पर महाराज भेज रहे हैं ये वाहिगुरु गुरमंत्र भी तू हर पासे सुन सकता है। फिर ये अंदर तेरे ऐदा ही चलता रहूगा, आप चलूगा, बोलने की फिर लोड़ नहीं पैनी। ਜਦੋਂ तेरा प्रेम पै जाऊगा, ਜਦੋਂ तू मालिक ਨੂੰ बुलान हटता ही नहीं। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪ ਹੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਬੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਆ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲ ਪਊਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਚੱਲ ਪਊਗੀ, ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਹ ਚੱਲ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ बुला नहीं हटता, मालिक ਨੂੰ बुलाई जाऊगा बुलाई जाऊगा बुलाई जाऊगा बुलाई जाऊगा। बुलांदे बुलांदिया रोमा दे विच ते सुर की सहज सुभाई निकल के आप दे घर चली जाओगी, क्योंकि माया ने खेड़ा छड़ दिया ना। पहले रोमा दे विच तो माया ने कंट्रोल किया होया सी, ज्ञान इंद्रियां तो माया ने कंट्रोल किया होया सी। जदों इन्हें ज्ञान इंद्रियां तो फतेह पा ली, क्यों रसना तो बोला, कन्ना तो सुना, नेत्रा तो इथों देखदा रहा, करदा ही गया करदा ही गया करदा ही गया, हर पासे माया दे बंदी खाने दे विच ते बाहर निकल गया। एक आया महाराज ने भेज दिता, एक खेत एक आया ए नगर एक किला मन नूं दिता आ। ऐसे किसी होर दी हुकूमत नहीं चल सकती, मन नूं दिता आ, लेकिन मन हार गया ना। महाराज ने भेज दिता, इस करके ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां तो इन्हां तो माया ने जाल पा लिया, माया ने आले दुआले नूं घेराबंदी पा ली, मन अंदर गर्भ दे विच चला गया। हुण महाराज ने भेज दिता, जदों सिमरन कीता वाहिगुरू, कहने मंथन जदों होया वाहिगुरू, इहदे विच बहुत पावर है, इहदे विच इहो जी पावर है कि हर बंधन नूं कट्टण दी इहदे विच पावर है। कहने वो बंधन कटने शुरू हो गए, और बंधन कटण की निशानी भी महाराज ने दसी। महाराज ने भेज दिता, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां तो मन ने आप गुरमत के राही कम लेना शुरू कर, रसना तो गुरमंतर बिना बोले चल पिया। ਇਹਦਾ मतलब कि ਇਹ ज्ञान इंद्री ਨੂੰ मन ने आप दे कंट्रोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਮਨ ਆਪ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਲਗਾ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਲਗਾ। आनंद साहब जी की बाणी दे विच महाराज भेजते रहे, ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया। इस शरीर नूं, एदा मतलब कि यह शरीर भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं, ये वैल्यूबल चीज है। इहदे रोमा दे विच माया ने इनू कंट्रोल किया होया है। एग्जाम्पल लेने आपां, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि नेत्रा तो नेत्रा दे राही ही कॉन्टैक्ट है। चलो ये पहली पोजीशन, कन्ना दे राही भी है, ठीक है। लास्ट दे विच आ जाओ, रोमा दे राही भी है। रोमा दे विच दी एक पावर निकलदी आ, बाहर निकलदी, जिन्हों साढ़े आले दुआले कोई बैठा हो, जिहड़ा थोड़ा सहज दे विच होगा, रोमा दे राही उन्हों आप नूं अंदर उस पावर का उहदा महसूस हो जाऊगा। नकारात्मक पावर का भी महसूस हो जाऊगा, सकारात्मक पॉजिटिव पावर का भी महसूस हो जाऊगा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੀ आदान प्रदान ਹੁੰਦਾ है रोमा दे विच ते। इन रोमा तो माया ने आपने अपना कंट्रोल कर लिया, जाल पा लिया। हुण महाराज भेज दे रहे हैं, जदों तुसीं गुरमंत्र दृढ़ करोगे, ਇਹ रोमा दे विच भी वो सच बस जाऊगा। काल दा बंदी खाने दे विच ते मन ब्रह्म अग्नि प्रगट होगी। इथों वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू,
सुन रहे हो कहने जो प्रगट हो जूगी मन अगर महाराज ने आप विचार लो रोम श्वास ग्रास में कहा होंगे तो अगे श्वास श्वास के रोम रोम का जिक्र ना किया होगा वो भी तो किया है ना क्योंकि वो अवस्था आ पहले महाराज ने भेज दिता की दृढ़ कर कहने सब तो पहला था रजो तमो सतो दे विच ते इकट्ठा होके ये पाउण दे शब्द दे विच बैठ वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु कहने एदे विच बैठ ये उदाहरण देके आप नक्शे की खेड समझा रहे हैं ये महाराज ने खेड तो अंदर सुन दी समझाई है कहने जो एदे विच इकट्ठा होके बैठ गया एदे विच आ गया धुन में ध्यान ध्यान में है जानिया गुरमुख अकथ इत्थे तो लैके और इत्थों तक दी जो स्टोरी आ एदा जेड़ा इत्थे तो लैके और महाराज कहने इत्थे तक दी जेड़ी जर्नी आ वो है अकथ कहानी नाग घाट तो चल के मालिक दे दर ते पहुंचण दा जेड़ा पेज है वो है अकथ कहानी उस तो अगे महाराज ने भेज दिता श्वास श्वास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चले उस तो अगे महाराज ने भेज दिता चले जेड़ा रोम रोम है वो कौन ते आऊगा कहने गुरमुख ते आऊगा वो अवस्था है कहने श्वास गिरास दे राही शुरुआत हो गए श्वास श्वास ते रोम रोम दी अवस्था दे विच मन जाऊगा क्यों क्योंकि माया ते पूरी तरह उदा खेड़ा छुड़ सके क्योंकि एक त्रिकुटी तो गया माया ने खिंच लिया थले फिर आ गया ये फिर त्रिकुटी तो गया ये फिर थले आ गया माया ने खिंच लिया थले महाराज खेड़ समझा रहे हैं कि ऐसी प्रीत कर ऐसा चेता कर कि तेरा रोम रोम ही उन्होंने बुलाने लगे केवल तेरी रसनाई ना बुलावे तेरा हृदय भी उन्होंने ही बुलावे कहने हाथ पैर ते काम कर शीत निरंजन नाल ये नहीं कहा कि महाराज ने भेज दिता 28 पैर त्या कहने जनो एहो जी अवस्था होगी ते कहने तेरे रोम रोम दे विच ते उदा सिमरन चलना शुरू हो जाऊगा और उदे लई सानू तो महाराज ने जुगतियां भी दसिया भेज दिता जैसे ए भवसागर दे विच ते निकलण दे लई सानू श्वास ते ग्रास रजो तमो दे विच ते निकलण दे लई श्वास ते ग्रास दी विधि दसी फिर उस तो अगे सानू भेज दिता श्वास श्वास दा जेड़ा कल्ले बैठ के नहीं किया जाता वो सार संगत दे विच ही आप कर सकते हैं उस तो अगे भेज दिता सारी खेड प्रेम दी है भी आप समझ लो महाराज खेड समझा रहे सुरत दा निरंतर मालिक नू याद करी जाना सहज सुवाई एक चीज दा हृदय दे विच बस जाना हृदय दे राही ही रोमा दे विच बसदी है जुगती समझनी आपां ने जिहदा बहुत अटूट प्रेम मालिक दे नाल बन गया उदा रोम रोम आप चल पैंदा है क्योंकि उन्होंने दूसरी चीज चेते आ ही नहीं रही वो तो भावें खा रहा आया पी रहा आया जा रहा आया हस रहा आया बोल रहा आया रो रहा आया उदा की है कि मालिक की याद चली जा रही है चली जा रही है चली जा रही ते वो आवाजा ला रहा वाह गुरु जिदा किसी का कोई गुजर जाता है ना ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ इसी तरीके नाल महाराज कहते ने जिन्हों आले दुआले की खबर ही कुछ नहीं रही इन्हें साची प्रीत हम तुमस्यो जोड़ी तुमस्यो जोर अवर संग अवर दा मतलब माया दे नाल कहने अवर संग तोड़ी कहने जी जदों किसी दे नाल प्रीत नहीं रही सिर्फ मालिक दा चेता सिर्फ मालिक
तू ही चाहिदा आ, तू ही चाहिदा, तू ही तू ही तू, कहने सिर्फ तू ही चाहिदा आ। कहने जो दिन ते रात, रात ते दिन एक ही गल कह लगा, सिर्फ तू ही चाहिदा आ। वाह गुरु, वाह गुरु। कहने जो बुलान हटदा ही नहीं, कहने वो फिर हिरदे भी बुलान लगा, फिर चुप करके भी बह गया ना ऐसे, अंदर आवाज लगती गई, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। दरवाजा खोल दे वाले, दरवाजा खोल दे। ये तो महाराज प्रेम की भेद दे रहे हैं, कहते तो प्रेम का भेद है। इनू धक्के नाल किवें करोगे, इनू धक्के नाल किवें करोगे, किसी की याद में धक्के नाल किवें बसाओगे। इस करके भेज दिता, कहने जोर दी खेल नहीं, ये जोर दी खेल नहीं। जे सियाणपा दे राही किया जाता तो बड़ी छेती मालिक नूं ये मन, क्योंकि ढीठ हो गया ना काल दर्शन करके, तो मालिक नूं हथ वस कर लेता है। इथों या मजबूर है, इथों मजबूर है। महाराज ने भेज दिता एक ही मार्ग आ, सिर्फ एक निमाड़ा होना और सिर्फ डिगना, सिर्फ डिगना। मेथों नहीं कुछ भी होना, मैं क्या बाजा ही लाई जाना, वाह गुरु, वाह गुरु। कहने का तुम ए दिमाग तो जोर पाई जाना। भगत ताना जी नूं किसी ने कितना ज्ञान दिता, दस जरा महाराज बेटे ने। वो अपने पशुओं नूं चराने जाते, किते भी जाते, खेत जाते, किते जाते, वो की करते रहते भी भरोसा मालिक नूं, गोबिंद नूं, ठाकुर नूं मनाते ही रहते, उहदे नाल प्रेम ही इतना पा लिया। तू ए वाली बुक्स पढ़ रहा है, तू ए पढ़ रहा है, तू ए पढ़ रहा है, ए पढ़ रहा है, तू की कर रहा। महाराज भेजे सिर्फ निमाड़ा, सिर्फ निमाड़ा। निमाड़ा होना ही ज्ञान की शुरुआत है। हाथ पैर जोड़ के बस, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। फिर इदा इदा आवाज लाई जाओ तू। जो तेरी ये पुकार इतनी सच्ची हो जाऊगी, इतनी सच्ची हो जाऊगी, इतनी सच्ची हो जाऊगी कि तेन संसार भुल जाऊगा। महाराज भेज तेरे अकथ कहानी बन जाओगी, अकथ कहानी बन जाओगी। वो तेरा प्रेम का बुलाया हुआ मालिक नूं, वाह गुरु, अकथ कहानी बन जाऊगा। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। वो अकथ कहानी का विशाल रूप धारण कर दूगा। गुरमुख नादन, गुरमुख वेदन, गुरमुख रहा समाई, कहने वेद का रूप धारण कर लो आगे जाके। ये महाराज ने ये अरदास, ये अरदास इस करके भेज दिता, कहने सिमरन नहीं छड़ना, सिमरन नहीं छड़ना। जे सिमरन मन ने छड़ दिता, महाराज पे तेरे माया घेराबंदी कर लोगी, माया घेराबंदी कर लोगी, जाल परो लोगी आले दुआले। इन्हें नैनू नकटू सरवणु रसपत इंद्री कहा ना माना, बाबा अब ना बसूएगा। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਮਾलिक ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ लगे। महाराज भेज देने इस सिमरन दे राही होगा, ये सिमरन दे राही होगा। जदों तू प्रेम दे विचों मालिक नूं आवाज लाई जाना आ, निरंतर आवाज लाई जाना आ और निमाणा होकर अरदास करी जाना, सुरत करके अरदास करना आ। महाराज भेजे ने जो तू निरंतर सिमरन करता रहेगा, कि तू किसी की निंदा करेगा नहीं करेगा, कि तू किसी तो वैर विरोध करेगा नहीं करेगा। क्यों? तेरी सुरत तो उधर लग गई ना, तेरी सुरत उधर लग गई, तेनों मिलाप चाहिए आ।
हाँ जे तू सिमरन छेगा तो फिर ये रसना तो त्रै गुणा दिया विचारा करन लगेगा। महाराज ने भेज दिता इनू इन्ना क दृढ़ कर जे तू रजो तमो सतो ते कुछ संसार दे विच खेडण भी जावे ते वो हिरदे दे विच चल पो। हुण साडी विचार हुंदी है भी आपां कामकाज भी करने हुंदे आ, महाराज ने तो वो जुगती भी दस दी। महाराज ने भेज दिता जिथे तेनू रसना की लोड़ दृष्टमान कम पाउण पाणी बैसंतर की बाणी की लोड़ दृष्टमान कम्मां नू करन दे लई पैवे ते हिरदे दे नाल सिमर लई। हाथ पैर ते काम कर शीत निरंजन नाल, कहने फिर अंदरों हिरदे दे राही सिमरी। ਉਹ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੇਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। भावे सिर तो कोई ढोल नगाड़े आके बजा देगा उन्होंने कोई फर्क नहीं पैना। क्यों? क्योंकि उहदी लिव मालिक दे नाल जुड़ी आ, वो तो अंदरों उहदी याद चल रही है, बाहर दे शोर शराबे तो उहदा कोई मतलब नहीं। वो महाराज ने अंदर सुरत की गल दसी, सुरत की शब्द ते सुरत दा एक होना ये बुझो आपा महाराज तो इथों शब्द चल रहा है, इथों शब्द चल रहा है। जदों सुरत विचारा तो रहत होके इथों पहुंची, महाराज ने भेज दिता इस शब्द नू सुनना शुरू करता। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸੰਗ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਫੜੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਰਲ ਗਿਆ ਨਾ। महाराज ने भेज दिता जे इधर ते चला और ए इलाके दा पूरी तरह भुल गया, पूरी तरह भुल गया, सहज सुभाई ही उदे राही जीऊगा। इधरों मरूगा उधरों जीऊगा। जिन्हों आपां मरना कहने आ वो जीना है, जिन्हों आपां जीना कहने आ वो मरना है। ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਰਨਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਪਾਉਣ ਛੱਡਦੀ, ਆਪਾਂ ਪਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਪੂਰੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ वो सो के उठ गया, वो सो के उठ गया। महाराज ने भेज दिता वो सो के नहीं उठा, वो सो गया। वो सो के उठिया नहीं, वो जागता था इत्थे आ, क्योंकि असल घर का थिर घर का या आ। हुण महाराज भेज दे रहे हैं जे इत्थों ते चलूगा और इत्थों दा पूरी तरह भुल गया, पूरी तरह भुल गया, सब कुछ भुल गया। जिन्हों आपां कहने कुंभ क्रिया दे विच आ जाओ, इत्थे दा पूरी तरह भुलण दा सानू महाराज ने एक ज्ञान दिता। ਇਹ 9 ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਥੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰ ਦੋ, ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੜ ਪਾ ਦੋ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਇਹਨੂੰ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਖਿੱਚੇ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀ ਗਿਆ ਕਰੀ ਗਿਆ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਥੋਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ 9 ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਠਾਕ ਕੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਮਨ ਬੱਚੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਡ ਸਮਝਾਈ, ਜੀਏਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਏਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ जग मुआ, मरना ना जाने कोई। फिर महाराज ने बोला ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे। पौड़ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੌੜ ਸੁਖਮ ਹੈ ਨਾ, ਪੌੜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੌੜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਆ, ਪੌੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਮਨ ਸੁਰਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਆ, ਨਾਮ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਪੌੜ ਸੁਖਮ ਮਨ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹੱਥ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਰਤ ਰੂਪ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੌਣ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਮਨ ਹੈ ਮਨ ਪੌਣ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇसी ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਤੇ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ ਯਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਦੁਨ ਚੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਜਿੱਧਰ ਇੱਧਰ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਦੇ ਆ, ਰਸਨਾ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਆ ਤੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇसी तरीके महाराज ने भेज दिता, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਬਣਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਯਾਰ ਜਾਗਦਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਗਦਾ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਬੰਦ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੌੜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪੌੜ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੌੜ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਅਗਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੂਗਾ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਊਗਾ ਔਰ ਸਦੀ ਵੀ ਜੀਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਦੀ ਵੀ कैसे ਜੀਊਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ पौड़ माया भी इलाके का गुरु है, और माया थिर नहीं है, माया थिर नहीं है। लेकिन महाराज ने भेज दिता जेड़ा साड़ी सुरत का गुरु आ वो थिर है। इस करके जे ने उस थिर गुरु का संग कर लिया तो यह सदी भी जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो शब्द जेड़ा गुरु है, महाराज ने भेज दिता आद अंत एक ही अवतारा, सोई गुरु समझे हमारा। कहने ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰਗ ਹੈ। जिदा मालिक अजूनी सहबंग है, जिदा मालिक जन्म मरण दे विच नहीं, उदा ही वो गुरु शब्द गुरु भी जन्म मरण दे विच नहीं। इस करके महाराज ने भेज दिता जे इन्हें उस शब्द गुरु का संग कर लिया तो ये अमर पदवी प्राप्त कर जाऊगा, क्योंकि शब्द का जमदा मरदा ही आद अंत एक ही अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। महाराज ने खेड़ समझाई ओ तेरा गुरु आ, शब्द तेरा गुरु आ,
तू शब्द की भगती करनी आ, तू शब्द की भगती करनी आ, नाम निरंजन की भगती करनी आ। किसी आकार का तू ध्यान नहीं धरना, तू शब्द का ध्यान धरना, शब्द का। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भेज दिता, तू शब्द का निरंकार का निराकार का ध्यान धरना आ, क्योंकि तू निरंकार का बच्चा आ। ये महाराज खेड समझा रहे हैं। जेड़े जिन्हों अनहद कहा गया, महाराज ने खेड समझाई, जेड़ी अनहद है, जेड़ी घट घट दे विच इदां चल रही है, अनहद एक वाइब्रेशन के तौर पे चल रही है, और वो कोई जगह ऐसी नहीं है जिथे वो चल नहीं रही। कहने जदों तेरा उहदे नाल सुरत दा, उहदे नाल संग हो जाऊगा, उस शब्द गुरु का संग हो जाऊगा, महाराज ने भेज दिता, फिर जाके कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं मरता। क्यों? क्योंकि जेड़ा एदा गुरु आ, ये सुरत शब्द दे विच समा गई। और ये भी महाराज ने भेज दिता, कहने ब्रह्म ज्ञानी हर थां तो मौजूद है। वो कहने क्यों मौजूद है? क्योंकि वो शब्द का संग करके, और वो शब्द खंड पाताल दीप, महाराज कहते ने हर कहने तरह लोकां में शब्द रव्या। कहने जदों उस शब्द दे नाल ये सुरत का आपस दे विच मिलाप हो गया, महाराज ने भेज दिता, उस शब्द का कोई अंत ही नहीं है, कोई सराई नहीं है, अंत ही नहीं है। गुरु नानक देव महाराज जी ने भेज दिता, नाम दे राही वो खेड़ समझा रहे हैं। कहने लखा लखा पताल आकाश खंड, कहने किथे किथे दा भेद उन्होंने आपां नूं कलमबंद करके दे दिया। कादे राही? नाम दे राही। कहने एक धरती आ, होर धरती आ, होर धरती आ, लखा ही सूरज है, लखा ही पताल है, लखा ही आकाश है। कादे राही? महाराज ने एक खेड़ गहराई नाल समझो। महाराज ने खेड़ समझाई, कहने जितने भी खंड है, जितना भी कुछ है, जेड़ा आरते दे विच आपां सरवण करदे, इदां दा महाराज ने कहने कि यही वाली धरती नाम तो रखी हुई है, यही वाला जेड़ा सूरज दिसदा है, ये नाम दे राही रखा नहीं। महाराज ने भेज दिता, जिन्ना भी कुछ है वो नाम दे टेक तो, नाम दी आधार तो रखा हुआ है। और जेड़ा मन बच्चे दा आप दा आपा शब्द गुरु नूं समर्पित हो गया, और वो शब्द गुरु हर जगह मौजूद है, ते ब्रह्म ज्ञानी भी हर जगह मौजूद है। ये महाराज ने खेल समझाई। लेकिन उस शब्द गुरु का संग करना महाराज ने भेज दिता, पौड़ दे राही पूरी तरह ऊपर चले जाना। समझो शब्द दे नाल लिंक टुटी हुई आ, पौड़ नूं खिंच रहा आ, इथों सारा आले दुआले खेड रहा आ, देख रहा आ, हस रहा आ, बोल रहा आ। महाराज ने भेज दिता, इसी तरीके नाल जदों पूरा जे नूं पौड़ एक बार आ जाए दोबारा आवे ही ना, ये कुछ कर सकता है? जदों असीं कहने थोड़ी देर सहज नूं सुन ले, सेवा हो गई, किद्दां सेवा हो गई? फिर खेडे हो गए, चलो 2 मिनट के लिए इहनूं सांस दे देंगे हैं, फिर बंद करते हैं, देखो चलो 12 घंटे कम कर। श्वास 2 मिनट लैवे और 12 घंटे कम करे, या 1 साल कम कराओ इनू एक सांस देके। असीं कहने भी मैं सहज सुन ली 10 मिनट, मैनू अगे ना कोई वेद क्यों नहीं आ रहा? महाराज ने भेज दिता, जो ग्राही ही इतनी लई शब्द दी, तो उन्ना ही मिलूगा ना। इथों आ पौड़ नूं खिंचदा आ, जिन्नी देर इथों सौंदा नहीं उन्नी देर कुछ ना कुछ करी जाता है। इसी तरीके नाल महाराज ने भेज दिता, जदों वध तो वध कहने अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परमगत मेरी। कहने जदों शब्द दा संग करूगा ते इहदी परम गति होगी, परम गति। फिर खेडूगा उत्थे। महाराज ने जिक्र किया, लेके गए महाराज पताल आकाश, कहने किथे किथे खंड मंडल, ये जो कलमबंद किया है उत्थे लेके गए होंगे ना सुरतां नूं, फिर ही तां कलमबंद किया उन्होंने। तो नाम के आधार तो लेके गए, क्योंकि उत्थे जाण दा जेड़ा जहाज है वो नाम है, क्योंकि उत्थे जाण कोई दृष्टमान कोई चीज उत्थे लेके नहीं जा सकती, नाम लेके जाऊगा। इत्थे तक महाराज ने भेज दिता, अकाल पुरख परमात्मा जी दे कोल भी तां नाम ही लेके जाऊगा। इस करके सानू नाम की संभाल दसी, कहते नाम की इन्नी संभाल करो
जिद्दां पाउण दा संग करदे हो उधर दा सारा कुछ भुल गए, पाउण दा ही संग कर रहे हो। महाराज ने भेज दिता हुण पाउण दे राही लोक बंद करके हुण शब्द दा संग करो। पाउण दे राही दरां नूं ठाको, जिद्दां आपां नूं विधि दसी जांदी आ कि हौली हौली पाउण नूं रोको, ध्यान इत्थे ले जाओ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਵਾਸ ਮਨ ਨਹੀਂ, श्वास चलती तो रहूगी लेकिन मन नहीं श्वास से कॉन्टैक्ट रखूगा। मन जिदा थे ये पाउण दे राही इनू आप दे आप दा जिंदा रहना महसूस होता है। इसी तरीके नाल पूरा प्रोपर इसी तरीके नाल शब्द की गहराई लऊगा। जो जो आप कहते हैं पाउण रोक लो, शब्द दे विच ध्यान ले लो। इस शब्द एदी जिदा पाउण गिराही है उदा परलोक दे विच शब्द गिराही है। फिर जदों यह शब्द की गिराही जाके वार वार लैंदा है फिर उठों या जिंदा हो जाता है, इधरों मर जाता है उधर जिंदा हो जाता है। उन्होंने कहने भी हो क्योंकि ऐसी चीज का संग कर लिया महाराज ने भेज दिता तन मन धन सब सौंप गुर को। कहने ऐसी चीज का संग कर लिया जेड़ी कदी मरदी ही नहीं, ये भी नहीं मरूगा। फिर महाराज कह रहे फिर ये क्यों मरूगा, जिन्नी देर पाउण दे विच ही रले जाऊगा, पाउण दे विच ही रले जाऊगा, पाउण दे विच ही रले जाऊगा। महाराज ने भेज दिता सुनने सुन मिलिया समदर्शी पाउण रूप हो जावेगे। इथों चला गया पाउण दे राही निकल के, बहुर हम काहे आवेगी, कहने फिर क्यों मैं आऊंगा। एक खेड़ समझा रहे महाराज कि शब्द की जाके थिर घर तो ग्राही ले, बैठ बैठ के बार बार फिर घर बैसो हरजन प्यारे। कहनी इत्थों आके बैठ, बैठ के पौड़ की गिराही लैनी बंद कर ते सुरत रूप होके शब्द की गिराही लै। किदा कहने उन्होंने सुनी चल। जदों विचारा तो रहत होके उन्होंने सुनी चलेगा सुनी चलेगा सुनी चलेगा सुनी चलेगा, निमाणे भाव तो धक्का नहीं करना तेने बिल्कुल भी। पाउण नूं तू पाउण दे राही जीने दे लई, पाउण दे राही खेलण दे लई तेरा कोई धक्का तो नहीं चलता। पाउण दी राही तेनू सहज सुभाई आ रही है, जो तेनू मिल रहा है उन्हें तू सहज सुभाई लैंदा चल, तू खिचे ना कुछ। तू इथों पाउण नूं खिचदा थोड़ी आ, पाउण दी गिराही दित्ती जाती है। इसी तरीके नाल शब्द दी गिराही तेनू दित्ती जाऊगी, तू खिचनी नहीं आ, तू तो बस बहना है। जिदा नेत्रां दे विच आके बैठ जांदा है पाउण दी गिराही आप मिलदी है, क्योंकि अकाल पुरख जी ने करता, ये करता नहीं है। इसी तरीके नाल महाराज ने कहते जदों तू इत्थे बैठ जाएगा, कहने थिर घर बैसो हरजन प्यारे। नाल ही महाराज ने समझाया सतगुरु तुमरे काज सवारे। कहने सतगुरु ने देनी है शब्द की गिराही तेनू। सतगुरु सिख को नाम धन दे, ये नहीं क्या कि तू नाम धन लै तेनू नाम धन मिल जूगा, नहीं। कहने सतगुरु सिख को नाम धन दे, जिदा अंदर महाराज भेजे रहे पाउण की गिराही देता है मालिक, उसी तरीके नाल बेगमपुरा दे विच दसम द्वार तो शब्द की गिराही देता है मन बच्चे। कहने सतगुरु सिख को नाम धन दे, गुरु का सिख बटभागी है। कहने जदों उत्थे शब्द की गिराही लैंगा लैंदा जाएगा संसार में भुल जाएगा। फिर कहने ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना होए। कहने फिर नहीं तू मरेगा। फिर भगत कबीर जी कहने जिस मरने ते जग डरै मेरे मन आनंद। उन्होंने कहा गया लख खुशियां बादशाहियां जे सतगुरु नदर करे। उठो महाराज ने भेज दिता मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया। ये श्वास की गिराही शब्द की गिराही जदों मिलनी शुरू हो गई, उन्होंने मालिक के आगमन का भेद आ गया। इथों मन ने गया आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सिद्धि मन बजिया वाधाइया। इथों जदों घनेरे शब्द बजन लगे, राग रतन परिवार भरिया शब्द गावड़ आई। अगे गया शब्दों दगाओ हरि केरा मन जिनी बसाया। नाम साचा नाम मेरा आधारो, साचा नाम मेरा आधार। वार वार महाराज दस रहे तेरा नाम ही आधार है, तू चक्रा दे विच ना पवे। तेनू शब्द सुनने शुरू हो गए,
तू बारंबार प्यार नाल सिमरन करके बारंबार दर तो आके बैठ, धक्का नहीं करना। शब्द की गिराही तेन आप मिलूगी, तू खिंचनी नहीं, तू तो जाके बह जाना है सिमरन कर। बस यही तू करी चल। मैं ना ही किते लबो एक नाव तेरा मैं पकड़ो। महाराज ने खेल समझा, ये महाराज खेल समझा रहे हैं कि तेरा नाम ही आधार है। जहां मात पिता सुत मीत ना भाई, नाम उहाँ तेरे संग सही। जिथे अवघट कलियां पीड़ियां, तिथे हर हर मुकत कराई। महाराज ने फिर दिता, कहने नित जपिए सास ग्रास नाम पर्वत जारदा। इथों इनू कहा, पहले वाहिगुरु गुरु मंत्र शब्द नू कहा, उस तो बाद इनू कहा। ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤਿਮ ਵੇਲਾ ਆਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਗਜਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਗਜਣਾ ਆ। ਇਹ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤ੍ਰੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਗਜਣਾ ਆ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ। निरंकार दे कोल जाण दा एक नाम ही आधार है। महाराज कहते हैं होर नहीं कोई आधार, किसी चीज का टेक नहीं लैनी। भैन भरावां दे नाल खेड़ समझनी आ, लेकिन नाम निरंजन का ध्यान करना आ। जेड़ा भी मन बच्चा शब्द तो अलावा किसी चीज का ध्यान करूगा, महाराज देखदे रहे जुना दे विच जाऊगा, उन्हें कोई नहीं जुना तो रोक सकता। ये महाराज खेड़ समझा रहे हैं। गुरु नानक देव महाराज जी नाम का भेद देण ही तो आप वर्गे जीवां नूं देण आए, क्योंकि पर्दा पर्दा पै गया था, हुक्म की पहचान ही भुल गया था। एक शब्द एक नाम की ही ओट लेनी आ, महाराज भेजते रहे। बाकी जे किसी चीज की ओट लई, महाराज ने भेज दिता काल की शरारत होगी, कहने मन तरूगा नहीं। कहने आनंद साहब जी की बाणी च विचारो, सुखमनी साहब जी की बाणी च विचारो, जिथे मर्जी चाहे विचारो, नाम निरंजन ही आधार है। और नाम निरंजन इथों चल रहा है, जिथे माया पाउण का इलाका खत्म हो रहा है, उथे नाम शुरू हो रहा है। ये महाराज खेड़ समझा रहे। कहने जे चरणा दे विच पैना भी है ना, तब चरणन अकाल पुरख जी दे चरण ने अनहद शब्द। इथों बेनती दे विच आपां नूं खेड़ समझा रहे हैं। कहने तेने बेनती की करनी आ, कहने तब चरणन मन रहे हमारा। तेरे चरणा दे विच मेरा चित्त जुड़िया रहे, सतगुरु दे चरणा दे विच मेरा चित्त जुड़िया रहे। ये महाराज खेड़ समझ, सतगुरु दे चरण ने अनहद शब्द, कोई आकार सतगुरु दे चरण नहीं। महाराज खेड़ समझ सतगुरु दे चरण अनहद नाम निरंजन शब्द आ, उहदा संग करना, ओही लास्ट समय दे विच इस सुरत नूं कढ के लै जाऊगा। महाराज ने कह दिता ए तो भरोसा करो, ए तो प्रेम करो, एदा सुन सुन के एदा संग करो। ये महाराज खेड़ समझा। वध दो वध गुरमंत्र दृढ़ करदिया होया, उहदा चेता करदा ही जा, करदा ही जा। ए ना महाराज खेड़ समझा, ए ना कर। सारे गुरसेवान भगत सेवान जी ने किरत कीती है, कहने भावे कोई भी कम कर, चेता तो तेरी सुरत ने करना है। नाल नाल दृढ़ करी चलवा गुरु वाह गुरु, मालिक कदों दर खोलेगा। इदा करते करते तेरी रसना बोलन हट जूगी, तेरा चित ही उन्होंने बुलान लगूगा एक दिन। फिर तेरा चित बुलाने बुलाने महाराज कहने तेरे रोम रोम उन्होंने बुलान लगूगा। फिर तू एक काया नो, क्योंकि काया तो माया का जाल हट जूगा, तू मालिक दे दर तो सुन दे विच चलिया जाएगा। उठो तेनू मालिक ने आप ही कृपा करनी है, अकाल पुरख ने करनी है कृपा। ये महाराज खेड़ समझा रहे। कहने तू पौड़ नू ध्यान नाल आपां विचार समझो, पौड़ नू तू कितों बाहरों नहीं लाया, पौड़ तेनू दित्ती जा रही है। जदों तू पौड़ दे इलाके दे विच एंटर हो गया, इसी तरीके नाल जदों तू पौड़ दे इलाके दे उपर उठ जाएगा, तेनू नाम दिता जाऊगा। नाम तू कितों लै नहीं सकदा, नाम दिता जाऊगा, नाम दिता जाऊगा सतगुर दे वल्लों, क्योंकि करता पुरख
अकाल जिहड़ा अकाल पुरख है वो ही करता पुरख है, वो ही सारा कुछ करण वाला है, वो ही पौण पानी वैसन कर सारा कुछ बनाने वाला है, वो ही देने वाला है, वो ही तेरे लेने वाला, वो ही तो खेड रहा है। तू आपने क्यों मत लाई जाना, तू तो ये शब्द का संग कर बस, और बाकी सारा कुछ भुल जा, तेनों इन्हें ले जाना आ, तू इनू सुनता चल इत्थे बैठ प्यार नाल सुनिया कर, धक्के नाल नहीं, प्यार नाल सुनिया कर। जदों पौण खिंचदी है तेनू ते तू ये नहीं करना मैं हुण पौण नूं रोक के हुण इत्थों बार-बार जबरदस्ती बैठा, महाराज जी जोर दी खेड तां हैगी नहीं, तू फिर प्यार नाल मालिक नूं फिर सिमरना शुरू कर दे, वाहिगुरू वाहिगुरू। थोड़ी देर दे विच माया फिर तेनों परे हट जूगी, तेरी सुरत फिर दसवें द्वार तो जा बैठूगी, तू फिर शब्दां नूं सुनी। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਾ ਗਿਆ ਹੋ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬੱਚੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। आओ सारा ही परिवार प्यार नाल फतेह प्रवान करो जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।